a joy to share with you from the Word of God. मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ वचन बांटने में। So there's a prophet called Isaiah in the Bible. बाइबल में एक यशाया नबी है, यशाया करके एक नबी है. Okay, and before Jesus was born, nearly 800 to 900 years before, he spoke something. यीशु का जन्म होने से पहले 800 या 900 साल पहले उन्होंने कुछ कहा। Okay, he saw through by the Spirit उन्होंने आत्मा के द्वारा देखा that a son will be born. कि एक पुत्र का जन्म होगा। Okay, and he gave some names to this child. और इस बच्चे को उन्होंने कुछ नाम दिए। Yeah, today we are going to look at those names. आज हम उन नामों को देखेंगे। But when this prophecy and promise came, it came in the midst of great difficulty. लेकिन जब ये भविष्यवाणी और जो वादा आया बहुत मुश्किलात से भरे समय में आया। And even today, और आज भी in the midst of Corona, we are going through a lot of difficult times. और कोरोना के समय में जो है हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। We don't know what's going to happen tomorrow. हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। But the Lord that we worship, He knows what is going to happen tomorrow. लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जानते हैं कल क्या होने वाला है। Isaiah chapter 9 verse 6. यशाया 9 अध्याय वचन 6। So this prophet, he looks ahead and by the power of the Holy Spirit, ये भविष्यद्वक्ता जो है आगे देखता है पवित्र आत्मा के सामर्थ के and he द्वारा। said, this child which will be born, this child will be like this. और उसने कहा ये बच्चा जिसका जन्म होगा इस प्रकार से होगा। Yeah, and this child is called Jesus. और इस बच्चे को जो यीशु कहा जाएगा। And different names are given to this child. और इस बच्चे को अलग अलग नाम दिए। So today we will try to look at two names. आज हम 2 नाम देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे. Number 1, पहला, Jesus is called the mighty God. यीशु को महान परमेश्वर कहा गया है। First of all, I just want to tell you, Jesus is God. पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु परमेश्वर है। Hey, 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 16। Jesus is God who was manifested as man. यीशु परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। But this Jesus is not just God, he is mighty God. लेकिन ये यीशु सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन वो महान परमेश्वर है। Yes, he is a mighty God. वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So when I say mighty, तो जब मैं कहता हूँ महान, I want you to listen what I am trying to say. मैं जो कहना चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिए। Mighty means he can do what is impossible for you is possible for him. महान सर्वशक्तिमान मतलब जो असंभव है वो उसे संभव बना सकता है। Now the problem is as we go through in life, we see so many failures, we so much frustration. We slowly begin to think, maybe God is not mighty. जैसे हम जीवन में से गुजरते बहुत सारी निराशा बहुत सारी हताशा देखते हैं और हम सोचते कि शायद परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान नहीं है। But today let me establish this fact that Jesus, the one that you are worshipping, he is mighty God. लेकिन मैं आज एक सच्चाई स्थापित करना चाहता हूँ आपके सामने कि यीशु सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर Yes, है। that means what is impossible for you, it is possible for him. इसका मतलब जो आपके लिए असंभव है वो उसके लिए संभव है। Genesis 18 verse 14. उत्पत्ति 18 अध्याय वचन 14। The Lord asked Abraham, प्रभु ने अब्राहम से पूछा who was 100 years, जो 100 साल का है, his wife is 90. उसकी पत्नी 90 साल की। So the Lord asked him, प्रभु ने उससे पूछा is anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? Yes, okay. He's asking a question. वो सवाल पूछ रहा है। Okay. Is anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? He's saying, if I have said उसने कहा अगर मैंने कहा है that you are going to have a child, कि तुझे बच्चा होगा it will happen. तो वो जरूर होगा। I want to encourage you this morning. इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। What is impossible for you? जो आपके लिए असंभव है But God has said it is possible in the Bible. लेकिन प्रभु ने कहा है बाइबल में ये संभव है। It is going to happen. वो होने वाला है Because your God is a mighty God. क्योंकि आपका परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Okay. Now this mighty power of God was released in the life, always
in the life, right from birth to death, resurrection, we see the power of God. हम जो है परमेश्वर के महान शक्तिशाली सामर्थ को जो है ना जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बीच का समय है जीवन का उसमें हम देखते हैं। हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो सामर्थ होता ना, जो ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता, साइंस नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता, वो सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। ओके, सो वी सी दैट राइट फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न, जो जन्म हुआ उसका उस समय से लेकर हम देख रहे हैं। Luke 1:34. लूका 1:34। One day an angel of God came to a virgin girl and said, "You are going to have a child." एक दिन एक कुंवारी स्त्री के पास एक स्वर्गदूत आकर कहता है कि तू बच्चे को जन्म देगी। Can a virgin have a child? क्या कुंवारी जन्म दे सकती है बच्चे को? No. नहीं। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा "You will have a child." तुम बच्चे को जन्म दोगी। Why God said? क्यों प्रभु ने कहा? Because He is the Almighty God. क्योंकि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। So when God is saying something impossible to you, you should know who is saying it. It's the Almighty God. जब परमेश्वर आपको कुछ असंभव बात कह रहा है कि वो होगा, तो आपने याद रखना है कि वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर कह रहा है। In fact, 2021, you all are going to see many impossible things in your life because becoming possible because of Jesus, who is the Almighty God. 2021 में आप बहुत सारी असंभव बातों को संभव होते हुए आपके जीवन में देखोगे, क्योंकि यीशु जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने ये कहा है। And we always see the almighty power of God being released in and through the life of Jesus. और हम हमेशा कहते और बात भी करते कि हमेशा यीशु के जीवन और उसके द्वारा जो परमेश्वर का महान सर्वशक्तिमान सामर्थ बहता है। For example, उदाहरण के लिए demons always listen to Jesus दुष्ट आत्माएं हमेशा यीशु की सुनते हैं, because he is the Almighty God. क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Yes, Luke chapter 4 verse 36. लूका 4:36। One word, एक शब्द, it's over. सब हो जाता। Why? क्यों? Because there is power in his words. क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ है, There's authority in his words. उसके शब्दों में अधिकार है। And I am praying for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, When you speak, जब आप बात करोगे demons will listen. दुष्ट आत्माएं सुनेंगी। Sick people, बीमार लोग, all kinds of sick people, when they were brought to Jesus. हर प्रकार के बीमार लोग जब उनको यीशु के पास लाया गया। Luke 6:19. लूका 6:19। You know, it was a normal thing when the sick people they saw Jesus. They will only say to Jesus, "Just let us touch you." ये आम बात थी, जब भी यीशु को बीमार लोग देखते थे ना, वो कहते थे हमें सिर्फ आपको छूने दो, Just let us touch you. सिर्फ आपको छूने दो। Moment they touched जिस क्षण उन्होंने छुआ, the Almighty Jesus, the power which is inside him will come out. सर्वशक्तिमान यीशु के अंदर जो सामर्थ था वो बाहर आता था। Yes, that same Jesus is here even today, right now. वही यीशु आज यहाँ पर भी इस समय उपस्थित है। So if you have any infection in your blood, अगर आपके खून में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, any infection, I'm talking about blood related infection. मैं लहू में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा I हूँ। am praying for you right now मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, that the power which flowed from Jesus जो सामर्थ यीशु में से निकला right now will flow and touch your sick body in Jesus' name. इस समय वो बहकर आपके बीमार शरीर को चंगा करेगा यीशु के नाम में। Even death मृत्यु भी has to agree सहमत होना पड़ता है उसको, because Jesus has power over death. क्योंकि यीशु के पास मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ है। John 11 verse 43. यूहन्ना 11:43। Get ready, I'm going to say something. तैयार हो जाओ, मैं कुछ कहने वाला हूँ। Our Jesus can reverse the irreversible. हमारा यीशु जो घुमाया नहीं जा सकता ना, उस चीजों को घुमा सकता है। Yeah, वापस मैं बोलेगा and then I'll tell you what it is. फिर से बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या है ये। Some people say this cannot happen. कुछ लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, This person has failed 3 times. ये व्यक्ति 3 बार नापास हुआ है, He can never be a graduate. ये कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता, Yeah, this person can never be an engineer. ये कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकता। Yeah, Lazarus had died and it was 4 days. लाजरस मरा था और 4 दिन हो चुके थे। Red blood has become black blood. लाल लहू जो है काला हो चुका था। Body has become decayed. जो शरीर है सड़ रहा था, It is now smelling. अभी बदबू आ रही थी।
But when Jesus said, "Come out, Lazarus," लेकिन जब यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ, काला लहू लाल बना, वाह, सड़ा हुआ शरीर वापस ताजा हो गया। And 2021, 2021 में, because Jesus is the Almighty God, क्योंकि यीशु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, will reverse things which have died in your life in the name of Jesus. जो आपके जीवन में चीजें मरी है उन्हें वो घुमा देगा यीशु के नाम में। The Lord will reverse the irreversible in the name of Jesus. जो चीजें घुमाई नहीं जा सकती परमेश्वर उसे घुमा देगा यीशु के नाम में। Yeah. So Jesus was born because of the almighty power of God. परमेश्वर के महान सर्वशक्तिमान सामर्थ के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, And you know he died for us. और आप जानते हो कि वो हमारे लिए मरे। Death thought, today I have finished Jesus. मृत्यु को ऐसा लगा कि आज मैंने यीशु को खत्म कर दिया, But he didn't know लेकिन उसे पता भी नहीं the power of God, परमेश्वर का सामर्थ, the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का On सामर्थ। the third day, तीसरे दिन Jesus rose up from the dead. यीशु मृतकों में से जी उठे। So what am I trying to tell you? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा This हूँ, Jesus whom we celebrate in this hour of Christmas, he is the Almighty God. ये यीशु जिसका हम क्रिसमस के समय पर उत्सव मनाते हैं वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। Romans chapter 1 verse 4. रोमियो 1:4, Even death had to bow before this Almighty God. मृत्यु को भी इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकना पड़ता है। Yes, and I believe और मैं विश्वास करता हूँ every challenge in your life हर एक चुनौती आपके जीवन में has to bow before this Jesus who is the Almighty God. उसको इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान यीशु के सामने झुकना ही पड़ेगा। That's why I say to you, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, impossible for you, but possible for Jesus. आपके लिए असंभव लेकिन यीशु के लिए वो संभव। Now, you may say, but that was good when he was alive and when he was here on the earth. आप कहोगे वो जब जीवित थे और जब पृथ्वी पर थे तब के लिए अच्छा था। Hebrews 13 verse 8 says, इब्रानियों 13:8 कहता है, all the young person listen. सारे जवान लोगों सुनो, The Lord wants to make history through you. प्रभु आपके द्वारा इतिहास रचना चाहते हैं। Don't wait for others to make history. You are the candidate for the Lord to make history through you. दूसरे लोगों को इतिहास रचने के लिए रुको मत, प्रभु आपके द्वारा इतिहास रचना चाहता है। आप ये मत सोचो कि मैं इधर आया हूँ क्यों, इस संसार में आया क्यों। प्रभु के पास हर सृष्टि के लिए योजना होता है। एवरी क्रिएशन, सारी सृष्टि के लिए, सब जितने बैठे यहाँ पर सबके लिए प्रभु के पास एक योजना है। आप उसके अंदर जाओगे ना, उसमें आपको तृप्ति मिलेगी। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी हैप्पी। आप उसमें तृप्त होंगे, आशीषित होंगे, खुश होंगे। ओके, सो जीसस हैज नॉट चेंज्ड। तो यीशु बदले नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब impossible things even will happen today. असंभव चीजें आज भी होंगी। How will this mighty power of God work in and through me? How? आप कहोगे मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा ये परमेश्वर का महान सामर्थ कैसे प्रकट होगा? How will this manifest in my problem? मेरी समस्याओं में कैसे प्रकट होगा ये? How? कैसे? Very simple. Listen very carefully. बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। Mark 9:23. मरकुस 9:23, Mark 9:23. Jesus told a father यीशु ने एक पिता से कहा whose son was deaf and dumb, जिसका बेटा जो है गूंगा और बहरा था, and the child was, tormented by demons. और दुष्ट आत्माओं के द्वारा इस बच्चे को सताया जा रहा So था। the child will think about jumping in the fire, jumping in the water to die. बच्चा सोचता था आग से कूदने के लिए, पानी में कूदने के लिए, मरने के लिए। Be with me. मेरे साथ रहो। So this problem was brought to Jesus. तो इस समस्या को यीशु के पास लाया गया। So this father is saying, please help me. तो ये पिता कह रहा है कृपा करके मेरी मदद You know करो। what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? Almighty God. सर्वशक्तिमान You know what परमेश्वर। he said? आपको पता है उसने क्या कहा? Anything is possible for you तुम्हारे लिए कुछ भी संभव है if you believe. अगर तुम विश्वास करोगे तो। So you may say, can I believe? तो आप कहोगे क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ? Yes. हाँ। How should I believe? मैंने कैसे विश्वास करना है? Agree to what you are hearing right now. जो इस समय आप सुन रहे हो उस बात से सहमत हो जाओ। एक बार सहमत हो जाओगे वो विश्वास बन जाता है और तब असंभव संभव हो जाएगा यीशु के नाम में। So maybe there are some things in your life, maybe in this 9 months,
हो सकता है इस 9 महीने में आपके जीवन में ऐसी कुछ चीजें होंगी, Lot of things have come. बहुत सारी चीजें आई, Impossible situation, impossible situation, impossible situation. असंभव परिस्थिति आई एक के बाद एक, But your Lord, लेकिन आपका प्रभु, you know what is his name? आपको तो उसका नाम क्या है? Almighty God. महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। You know what he can do? आपको पता है वो क्या कर सकता है? What is impossible for you? जो आपके लिए असंभव है It is possible for Jesus. वो यीशु के लिए संभव है। Number 2. दूसरा, Isaiah chapter 9 verse 6 यशाया 9 अध्याय वचन 6, is called the eternal Father. उसे अनंतकालिक पिता कहा गया है। Okay, now God has a family. परमेश्वर का एक परिवार है, Okay, in that God the Father, उसमें परमेश्वर पिता है, Jesus, यीशु है and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा है, All the three are there. तीनों भी है। They all three are God, वो तीनों परमेश्वर है, but yet they are separate लेकिन फिर भी वो अलग अलग है, because each one is a person. क्योंकि हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति है। Yeah, हर एक व्यक्ति है. Okay, so when Isaiah is saying that he will be eternal Father, तो जब यशाया कह रहा है कि वो अनंतकालिक पिता होगा, he is not saying Jesus is the Father. वो ऐसा नहीं कह रहा कि यीशु पिता है। Okay, सब लोग मेरे साथ मेरे नाम. Then what is he saying? फिर वो क्या कह रहा है? He's saying वो कह रहा है through the life of Jesus, यीशु के जीवन के द्वारा one thing will come out. एक चीज बाहर आएगी, Very clearly it will come out. बहुत स्पष्टता से बाहर आएगी। What will come out? क्या बाहर आएगा? The divine fatherhood of God will flow out of him. परमेश्वर पिता का जो पितृत्व है वो बाहर आएगा, जो दैवीय है। Yes, the fatherhood of God will come through Jesus. यीशु के द्वारा परमेश्वर का पितात्व जो है बाहर आएगा। Anytime you speak about the word father in the Bible, that means love. हर समय जब आप पिता जो शब्द है बाइबल में कहते हैं उसका अर्थ है प्रेम। All of us have been born out of a mother's womb. हम सभी का जन्म जो है माँ के गर्भ में से हुआ That है। means all of us had a father or have a father. इसका मतलब हम सभी के पिता थे या पिता है। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, sometimes our fathers have abandoned us. कभी कभी हमारे पिताओं ने हमें त्याग दिया होता है। Sometimes our fathers are absent when we need them. कभी कभी जब हमारे पिता की हमें जरूरत होती है तब वो उपस्थित नहीं होते। Sometimes our fathers have been abusive. कभी कभी हमारे पिता जो है गाली गलौज करने वाले हो सकते हैं। Sometimes our fathers have been alcoholic. कभी कभी शराबी हो सकते हैं हमारे पिता। Sometimes our fathers have not given us the time. कभी कभी हमारे पिताओं ने शायद हमें समय नहीं दिया होगा। Sometimes you have had good fathers. कभी कभी हो सकता है आपके अच्छे पिता थे, But finally, all the fathers are imperfect. लेकिन अंत में सारे जो पिता है असिद्ध है। But लेकिन this Jesus who I am talking about ये यीशु जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ is not like our natural father. वो हमारे स्वाभाविक पिता के जैसे नहीं है, He is a perfect father. वो सिद्ध पिता है। Psalm 68 verse 5. भजन संहिता 68 अध्याय वचन 5, He is the father to the fatherless. जिसके पिता नहीं है उसके वो पिता है। That means what is Jesus saying? इसका मतलब यीशु क्या कह रहे हैं? I am looking for people who want the father's love. इसका मतलब वो कह रहे हैं मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्हें पिता का प्रेम चाहिए। And if anybody says, "Here I am," और अगर कोई कहता है मैं यहाँ पर हूँ, the Lord is saying, "I am coming to you to give my love to you." तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरा प्रेम तुम्हें देने के लिए। Yes. So if you maybe you were abandoned, maybe I don't know what all has happened to you in your life, I don't know. शायद हो सकता है आपको त्यागा या छोड़ा गया होगा और बहुत सारी चीजें हुई होंगी। Don't worry. चिंता मत करो। God wants to make your heart an oasis of love. परमेश्वर आपके हृदय को जो है ना प्रेम से भरा रखना चाहता है। प्रेम का झरना बनाना चाहता है ये हृदय के अंदर। God wants to make your heart an oasis of love, so wherever you go, you share that love. प्रभु आपके हृदय को प्रेम का झरना बनाना चाहता है, जहां कहीं भी आप जाओ वो आप प्रेम उसमें से बांट सको। Yes. You may say, how will it happen? आप कहोगे ये कैसे होगा? Don't worry, here I'll tell you a small story from the Bible. चिंता मत करो, बाइबल में से मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। Before I tell you a story, let me say this. कहानी बताने से पहले ये कहने दो मुझे। Songs of Solomon, श्रेष्ठ गीत की किताब chapter 8 verse 6. 8 अध्याय वचन 6, It says like this. यहाँ पर ऐसा लिखा है, Love is as strong as death. प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है। कल अगर सवेरे मृत्यु आपके पास आया और दरवाजा खटखटाया, बोला मैं आया हूँ आपको लेने के लिए,
आप उसको बोल सकते हो क्या 3 घंटे के बाद आओ? नहीं बोल सकते। इसका मतलब मृत्यु के पास इतना ताकत है कि वो आपको कब्जे में लेता है। वैसा ही प्रभु कहता है, मेरे प्रेम में ऐसा ताकत है कि तेरा पूरा जीवन है ना, वो मेरे हाथ में मैं ले सकता हूँ। So much power. इसमें सामर्थ है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ this 2021 ये 2021 you will be captured by the love of God. आपको परमेश्वर के प्रेम में जो है ना दबोच लिया जाएगा। Yes. Now, Jesus has a very special heart for orphans. यीशु के पास ना खास करके अनाथों के लिए खास हृदय है। Jesus has a very special heart for ones whose fathers have abused, not related well with their children. यीशु के पास ऐसे लोगों के लिए जिनके पिता ने उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया, शोषण किया, ऐसे लोगों के लिए खास हृदय है। Jesus has a special heart for those children whose fathers have not given them time. जिन पिताओं ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया है, वैसे बच्चों के लिए यीशु के पास खास हृदय है। I'll show you in the Bible. बाइबल में से दिखाऊंगा। Small story and we'll close. छोटी सी कहानी फिर समाप्त करेंगे। Luke 10:38. Luke 10:38. लूका 10 में 38। There's a family. यहाँ पर एक परिवार One है। day Jesus is going to Jerusalem, but as he is going, he goes through a village. एक दिन यीशु यरूशलेम जा रहे थे और एक गांव से होकर जा रहे थे। So there's a woman called Martha. She watches Jesus is coming. वहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम है मार्था और यीशु को आते हुए देख रही हो। So Bible says she invites him into his home. और बाइबल कहती है कि वो अपने घर में उसे आमंत्रित करती है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, if you have never invited Jesus to your life, अगर आपने आपके जीवन में यीशु को आमंत्रित नहीं किया है, this day, आज का दिन please invite like Martha invited Jesus into her home. कृपा करके जैसे मार्था ने उसको अपने घर में आमंत्रित किया, वैसे आप आपके जीवन में उसे आमंत्रित करो। Can I ask you, मैं आपसे पूछूं, how many of you would go to a house where only orphans live? जिस घर में सिर्फ अनाथ जीते हैं, आप में से कितने लोग वैसे घर में जाओगे? I don't think many of us will go. मुझे नहीं लगता हम में से बहुत लोग जाएंगे कि नहीं। We will go to rich people's house. हम अमीर लोग के घर पे जाएंगे, We will go to well-to-do people's house. जो अच्छे से चलते हैं, जीवन चल रहा है उनके But see जीवन how में। Jesus picks up. लेकिन देखो यीशु कैसे उठाते हैं। उठाता नहीं है, वो कैसे चुनता है। उसका दिल समझना है आपने। आपको ये समझना है कि वो आपके लिए, वो आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए। जैसे लोग आपको देखते हैं वैसा वो तुम्हें नहीं देख रहा है। जिस दिन वो तुम्हारा ये जो मन है ना वो बदल जाएगा, मैं तुम्हें कहता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम में। So who is in this house? तो इस घर में कौन है? 3 people. 3 लोग, Mary, मरियम, Martha, मार्था, Lazarus. लाजरस। No father, no mother. पिता भी नहीं और माँ भी नहीं, But he goes there. लेकिन वो वहां जाते हैं। Why? क्यों? Because I showed you a scripture. क्योंकि मैंने आपको वचन बताया, He is the father to the fatherless. जिनके पिता नहीं है उनका वो पिता है। He gives special attention. वो एक विशेष ध्यान देता है उन पर। Not just to orphans, but also you may have father, but your father is in his own world. सिर्फ अनाथों के लिए नहीं, लेकिन शायद आपके पिता हो सकते हैं और अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। But you, I want to tell you, Jesus wants to be an everlasting father for you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपके लिए सार्वकालिक पिता बनने चाहते हैं। Yeah. Now he went to their home. यीशु उनके घर गए And of course we know they took good care of him. और हम जानते हैं कि अच्छा ख्याल रखा उन्होंने उनका। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, next year, na, अगले साल remember what I'm saying. याद रखो जो मैं कह रहा हूँ। Jesus said in Matthew chapter 10, I don't have the verse, but Matthew chapter 10, he said like this. यीशु ने मत्ती अध्याय 10 में ऐसा कुछ कहा, If anybody receives me, अगर कोई मुझे स्वीकारता है, he has received my father. उसने मेरे पिता को स्वीकारा है। If anybody receives my disciple, अगर कोई मेरे सेवक को स्वीकारता है, they have received me. उन्होंने मुझे स्वीकारा है। If anybody even gives a cup of water to the least of my disciple, अगर मेरे चेलों में से जो सबसे छोटा है ना, उसको अगर कोई पानी का प्याला देता है, he will not lose his reward. तो वो अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा।
किसको आप आमंत्रित कर दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जीवन में कौन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप परख लो कि आप प्रभु और उसके राज्य और उसके बच्चों के लिए आपका दिल, आपका दरवाजा खोले रखो, क्योंकि प्रभु आपको याद करेगा और आपको जरूर पुरस्कार देगा। He will definitely. वो आपको जरूर पुरस्कार देगा। John 11 verse 5. यूहन्ना 11 अध्याय वचन 5। Yeah. So he not only went to the house, सिर्फ वो उसके घर में नहीं गए, Jesus loved them. यीशु ने उनसे प्रेम किया। Loved. प्रेम किया। Very nice. I like this. It says he loved them. ये शब्द बहुत पसंद आता है मुझे। वो कहता है कि उसने उनसे प्रेम किया। Yeah. Orphan, nobody. कौन किसको मांगता है, किसको नहीं मांगता है। लेकिन स्क्रिप्चर में लिखा है एक छोटा सा परिवार, 3 लोग है, मम्मी नहीं, पापा नहीं, प्रभु उनके घर जाता है, खाना खाता है, और बाइबल आखिरी में लिखता है कि प्रभु यीशु उनसे प्यार करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पापा भी नहीं रहेंगे ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु खुद आपको पापा का प्रेम देखकर वो कहेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं। Not only he loved them. सिर्फ उन्होंने उनसे प्रेम किया, इतना ही नहीं। Look at John 11 and verse 3. यूहन्ना 11 अध्याय वचन 3। When Lazarus was really sick, really sick. जब लाजरस सच में बहुत बीमार था, You know what they send message? The sisters are sending a message to Jesus. तो बहनें जो है यीशु के लिए संदेश भेज रही है। You know what they are saying? आपको पता है वो क्या कह रही है? The one you love, जिससे तुम प्रेम करते हो he is sick. वो बीमार है। प्रभु प्यार देना एक है, लेकिन तुम्हें पता रहना है कि वो तुम्हें प्यार करता है। Amen. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। See, if you don't know this, you will have problem. अगर आपको ये नहीं पता ना तो आपके जीवन में समस्याएं होंगी। फिर Jesus will always keep giving you God's love. यीशु हमेशा आपको परमेश्वर पिता का प्रेम देता रहेगा। This you should know. तो आपने ये जानना है। When people reject you, जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, people talk about you, जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, when people betray you, जब लोग आपको धोखा देते हैं, when people gossip about you, जब लोग आपके बारे में जो चुगली करते हैं, you should know this. तो आपने ये जानना है। My prayer today is this. मेरी प्रार्थना आज ये है, Let Jesus be the everlasting Father for you. होने दो यीशु आपके लिए जो अनंतकालिक पिता बन जाए। That means he will love you, इसका मतलब वो आपसे प्रेम करेगा, he will accept you, आपको अपनाएगा, he will care for you, आपका ख्याल रखेगा, he will protect you, आपकी सुरक्षा करेगा, he will provide for you. आपके लिए प्रबंध करेगा। He is a father. वो पिता है। उन्होंने तो प्यार दिखाया, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। देखो प्रार्थना कब बदलता है पता है? प्रार्थना का जो कलर होता है ना, कब बदलता है? जब आपको पता है कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। Let me close. So anyway, Jesus allows him to die. यीशु उसे इजाजत देता है मरने की। Okay, John 11 verse 33. यूहन्ना 11 में 33। Now, when Jesus goes there, जब यीशु वहाँ जाते हैं, he sees people are crying, वो देखते कि लोग रो रहे हैं, Mary is crying, मरियम रो रही है, and now Jesus gets very angry. That's what it says. और अभी यहाँ पर वचन कहता है यीशु को बहुत गुस्सा आता है। Why is angry? वो गुस्सा क्यों है? Because of the sadness which has come because of death. मृत्यु के कारण जो दुख आया था ना, उसके कारण Yeah, so he's very upset बहुत दुखी हो, because he really loved Lazarus. क्योंकि उसने सच में लाजरस से बहुत प्यार किया। Does he love you? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? Absolutely. पूरी तरह निश्चित है। He is called the eternal father. उन्हें अनंतकालिक पिता कहा गया है। He is the father of the fatherless. जिसका पिता नहीं उसके वो पिता है। He is the helper of the helpless. जिसकी कोई मदद नहीं उसके वो मददगार है। Yes. Not only this, look at this verse. John 11 verse 35. यूहन्ना 11 में 35। Jesus wept. यीशु रोए, God cries. परमेश्वर रोते हैं।
You know why he cries? आपको पता है क्यों रोते हैं? Because he is a father. क्योंकि वो पिता है। See, when you are a father and your children grow through problems, do you cry? जब आप पिता हो और आपके बच्चे जो समस्या से गुजरते हैं तो क्या आप रोते हो? Yes. हाँ। This scripture only tells me that not only is Almighty, ये वचन मुझे बताता है कि सिर्फ वो सर्वशक्तिमान है इतना ही नहीं, or he is all wise, या फिर सर्वबुद्धिमान है इतना ही नहीं, but he is also a father लेकिन वो पिता भी है who can feel जो महसूस कर सकते हैं, what you feel, जो आप महसूस कर सकते हो, what you go through. जिसमें से आप गुजरते हो, So he cries. तो वो रोते हैं। And everybody is watching him. और सभी उसको देख रहे हैं। God is in action actually. Actually ना कभी कभी हम बोलते हैं ना प्रभु तू देखता है क्या, सुनता है क्या? Here it is. यहाँ पर है वो। God actually is not only hearing you, sometimes there are tears in the eyes of the Lord. प्रभु सिर्फ आपको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी उसके आंखों में आंसू भी होते हैं, Looking at you आपकी ओर देखते हुए, and looking at the challenges which the family is going through. और परिवार जो चुनौती में जा रहा है उसको देखते हुए Jesus wept. यीशु रोए। John 11:36. यूहन्ना 11:36। The people who were standing, जो लोग वहां पर खड़े थे they said, उन्होंने कहा, see देखो how much he loved him. कितना ज्यादा उसने उससे प्रेम किया। Does he love? क्या वो प्रेम करता है? Yes. हाँ। That's why he is called the eternal father. इसलिए उसको अनंतकालिक पिता कहा गया है। Not only he showed love, सिर्फ उन्होंने प्रेम दिखाया नहीं, not only they knew that he loved them, सिर्फ वही नहीं जानते थे कि वो उनसे प्रेम करता है, but even people when they saw, लेकिन जब लोगों ने देखा वो भी, they said, उन्होंने कहा, look how Jesus loves these orphan children. देखो यीशु इन अनाथ बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। Everybody can leave you. सभी आपको छोड़ सकते हैं, One person will never leave you. एक व्यक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Did a miracle happen? क्या चमत्कार हुआ? Very big miracle. बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। Very big miracle. बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। So big इतना बड़ा that it shook the whole Pharisees. It shook everybody over there. कि वहां पर जितने भी थे ना, सबको हिला दिया उसने। सब 4 दिन के बाद एक मुर्दा अगर जिंदा होना है ना, वो असंभव है। मरने के बाद 2 घंटे के बाद भी उड़ गया ना, तो भी डॉक्टर लोग बोलते नहीं वो मरा नहीं था। इसके लिए मंगता करके, क्योंकि उस समय यहूदी लोग बोलते थे 4 दिन तक वो जो आत्मा बाहर आ रहा है ना, वो मंडराते रहता है। यहूदी लोगों के दिमाग में ऐसा सोच रहता, इसलिए प्रभु ने कहा मैं रुकता हूं। 4 दिन खत्म हो गया, उसके बाद प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। सब लोगों को पता चला ये सामर्थी परमेश्वर है।